Hello everyone, myself Ayush Kumar and you're watching Ayush Aero Time. So in today's video, we are gonna study about current, the potential difference, resistance, the factors on which resistance depends, Ohm's law, circuit diagram, and we're gonna solve some numericals in the last, which are on the basis of all the topics that we're gonna study today. Okay, so in the last video we studied about static electricity, and in this video we are starting the current electricity. Current electricity is itself very unique, very interesting, and you'll find it very intriguing by the end of the second video of current electricity part. That is the video in which you will meet the Kirchhoff, the scientist Kirchhoff, who gave two very famous laws of electricity, the KCL and the KVL. So till then we are going to study the basics of current electricity, and then we're going to move forward to solving the circuit diagrams, and then we are going to do the circuit analysis and everything. Okay, so till then keep motivated, stay motivated, keep watching Ayush Aero Time, and let's start today's video. Okay, so let's start studying about current electricity. Okay, basically what is current electricity? As we studied in static electricity, that it is the flow, or it is the presence of static charges, that is those charges which do not flow, they comprise of this portion of static electricity. In current electricity we basically have the same charges who do not stay static, they move in a particular unidirectional flow. So this thing I've already explained in the previous video, that what is unidirectional flow and why do they move and everything. So I will give the link of that video in the description box, and you can watch that video from there. Okay, so it would be very beneficial for you, and then only you can continue with this video, as it is the second part. Okay, so what is current now? This thing also we have covered in the previous video, but let us revise it once again. What is current? Basically current is denoted by I or capital I, anything that you can say. Let this thing to be a wire. ठीक है, अब करंट क्या होता है इस वायर में? मान लो अब क्योंकि मेटल का वायर है तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट यही बात होती है कि फिर वो अंदर में स्कैटर्ड मोशन में रहते हैं, तो कोई उनका जो नेट एक पर्टिकुलर चार्ज आता है ना, वो ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिकली उस केस में कहते हैं कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक करंट के बारे में जानना है कि करंट होता क्या है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उनका जब यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है, सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड करंट। सब यही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल डायरेक्शन फ्लो करेंगे तो उसको करंट कहा जाएगा। ठीक है, अब करंट जो होता है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और करंट इज़ एम्पियर। अब करंट होता है क्या? बेसिकली सी, करंट क्या है? एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आई जो है वो जो एक्सप्लेन, इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन करंट का दिया जाता है तो वो होता है द नंबर ऑफ charge, the amount of charge that flows through a unit cross section area of a particular material in a particular second। मतलब एक जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, जो कि इस एरिया जो है, ये मान लो वायर का मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करेगा एक सेकेंड के अंदर, उसको करंट कहेंगे। मतलब करंट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्जेस, ओके, that flows through a particular area in a unit second, in 1 second। ओके, तो Q जो टोटल चार्ज, मान लो अगर पूरे कंडक्टर से टोटल चार्ज Q फ्लो कर रहा है और टोटल सेकेंड T टाइम सेकेंड ले रहा है वो चार्ज Q टू रीच द अदर एंड, तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो दैट वुड बी Q अपॉन T। अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे समझो, Q कूलम चार्ज है। ठीक है, T सेकेंड में अगर Q कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक सेकेंड में Q अपॉन T कूलम चार्ज फ्लो करेगा, राइट। तो यही यूनिटरी मेथड जो हमने पहले देखा था। तो यूनिटरी मेथड, अब एक सेकंड का हमें पता चल गया, हमें यही बताने कि एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो वही एक सेकंड की चीज़ हो जाती है करंट। ठीक है, तो इसी को करंट कहते हैं। तो एक फार्मूला में यहाँ से मिल गया, आई इज़ वॉट? Q अपॉन में T। अब मोर एवर एस आई यूनिट जो Q जो चार्ज है, चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। ठीक है,
टी तो टाइम ही है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड। और आई जो है, आई एम्पियर, आई बेसिकली डिनोट्स करंट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, ये तीनों के एसआई यूनिट्स हो गए। अब हमने अभी देख लिया कि करंट क्या है। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी ना फ्लो कर जाएंगे, मतलब मन किया तो एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन फ्लो कर, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ ना कुछ तो उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, कुछ उन्हें लगा होगा कि नहीं यहाँ पे कमी है तो हम यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नल एक मोटिव रहा होगा जिसकी वजह से कि वो फ्लो किए। ठीक है, अब वो एक्सटर्नल क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कि करंट फ्लो करता है, तो उस एक्सटर्नल फैक्टर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ तो और आसानी से समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इट इज़ बेसिकली एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हेन विच मेक्स अ करंट फ्लो थ्रू एनी सर्किट। ओके, तो ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि अगर कोई सर्किट है उसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी केवल इतना काम करता है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक सिंगल डायरेक्शन फ्लो कराएं, यानी कि एक करंट कंप्राइज करे। और बैटरी के एंड्स पे जब भी तुम देखे होगे जब बैटरी के ऊपर जब पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है इतना वोल्ट्स। वो वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें एक सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो कराता है। ठीक है, अब हमने ये भी पिछले वीडियो में देख लिया था कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो हमें पता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो इसका फॉर्मूला बनता है, वी का जो फॉर्मूला बनता है वो मतलब बेसिकली वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये तो हमें फॉर्मूला तो हम याद कर लेंगे, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, राइट। तो वो हम बेसिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई, ठीक है, कोई चीज़ है, जैसे कंटेनर का एग्जांपल लेके देखते हैं पहले। दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, एक में पानी पूरा भरा हुआ है, एक में पानी खाली है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस है, राइट, लेवल ऑफ वाटर में ही कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस है जिसकी वजह से कि यहाँ का पानी इधर की तरफ फ्लो करेगा, राइट, और फिर इसे सेम लेवल पे जब दोनों आ जाएंगे तब फिर रुक जाएगा। तो अब जितना वाटर फ्लो किया इधर, राइट, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस है दो ऐसे चीज़ के बीच में जब कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, यानी एक कुछ हायर लेवल, एक कुछ हायर वैल्यू होगी, कोई लोअर लेवल पे होगी। तो वो जो पर्टिकुलर डिफरेंस है जिसकी वजह से कि हायर की जो चीज़ है वो लोअर पे जाती है, तो उस चीज़ जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो मूवमेंट हो रहा है। तो उसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से भी जो चार्जेस का कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे मूवमेंट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो फॉर्मूला बनता है वो इस बेसिस पे बनता है। लेट से कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, और उसके इन्फिनिटी डिस्टेंस पे एक नेगेटिव पार्टिकल है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वन चार्ज है और इसका नेगेटिव वन चार्ज है। अब अगर हम इसको इन्फिनिटी डिस्टेंस से इसके क्लोज लाते जाएंगे और बिल्कुल क्लोज लेंगे, तो एक बात बताओ, या लेट से पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब हम इस पार्टिकल को अगर इसके क्लोज लाते जाएंगे तो हमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर क्लोज लाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये दोनों इंडिविजुअली तो रिपेल करेंगे। तो अगर हमें इसको फिर भी इसके पास लाना है तो हमें तो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद ही रिपेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली पास लाने के लिए फोर्स लगाना होगा। अब इसे अगर हम उठा के इस पर फोर्स लगाते जाएँ तो कुछ हम वर्क इस पर करेंगे, कुछ वर्क डन होगा ना ऑब्वियसली। तो वही जो वर्क डन है, यानी जितना काम हमें एक कूलम चार्ज पे, जितना काम हमें एक यूनिट चार्ज पे करना पड़ता है इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के पास लाने के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क डन को, उस एनर्जी जितना हम उसको दे रहे हैं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मूला।
ठीक है। और ऐसे तो हम समझ ही गए कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है जो बच्चे नए नए आते हैं 6-7 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा नया हो जाता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कहाँ से आया। तो बेसिकली इसको बस ऐसे समझो कि एक कोई एक्सटर्नल पार्टिकल है जिसको कि हमें ज़बरदस्ती दूसरे के पास लाना है और वो आ नहीं रहा, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही जब हम वर्क डन करेंगे, उसको जितना हम वर्क डन कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज पे, उसको पास लाने के लिए उस वर्क डन को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, डन, क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ज़ीरो डिस्टेंस लेट्स से। मतलब ये जो पार्ट है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि ये पार्ट जनरली लिखा नहीं जाता है, जो डेफिनेशंस लिखते हैं ना उसमें ये पार्ट नहीं लिखा जाता है। केवल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोज, ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, ठीक है। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, ऑब्वियसली हम कुछ क्यू कूलम चार्ज भी ला सकते थे, ठीक है। और हमें अगर मान लो कि हम क्यू कूलम चार्ज ला रहे हैं और उस केस में हमें वर्क डन कुछ हो रहा है डब्लू, ठीक है, मतलब हमें डब्लू जूल ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है इस क्यू कूलम चार्ज को इस चार्ज के पास लाने के लिए, ठीक है। अब हम अगर इस चार्ज को लाने के लिए हमें क्यू कूलम चार्ज लगानी पड़ी है तो क्यू कूलम चार्ज के लिए हमें डब्लू जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमें डब्लू अपॉन क्यू जूल वर्क करना पड़ेगा, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट 1 कूलम चार्ज। तो ये जो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक और फार्मूला क्या आ गया, वी इज इक्वल्स टू डब्लू अपॉन में क्यू, राइट। ये भी एक फार्मूला है जहाँ की वी क्या है, वी डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज़ वोल्ट्स। एसआई यूनिट कहते हैं वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट्स एसआई यूनिट है। और ये तो वर्क डन है, वर्क डन इज सिंपली जूल। और क्यू क्या है, क्यू कूलम चार्ज, क्यू इज चार्ज, राइट, क्यू इज चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, जूल वर्क डन, राइट, वर्क डन। तो बेसिकली ये हमें एक और फार्मूला मिल गया। अब इस पर्टिकुलर ये जो इन्फिनिटी का केस है इसको हम रिलेट कैसे करेंगे इस सर्किट से, इसको समझते हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये फार्मूला डिराइव करने के लिए जो हमने यूज़ किया उसको हम रिलेट करते हैं सर्किट से, ठीक है। अब देखते हैं सर्किट में कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं इस फार्मूले को। देखो, लेट्स से एक पर्टिकुलर सर्किट है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी है एंड देन वी हैव लेट्स से a V voltage battery, okay, no problem. Now we know that at the positive and there are two terminals, okay, the positive and the negative terminal in the battery. नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव पे क्या होता है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे भाई के पास कमी है तो हम चलो उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। यही हो गया बैटरी के अंदर होता है। बैटरी बेसिकली सर्किट में काम क्या करता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस थे, तो अब जो वर्क डन, जितना वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है अपॉन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर लेट से टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज ये जो बैटरी है ये यहाँ से भेज रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, लेट से क्यू चार्ज भेज रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्यू कुछ चार्ज है, और उस चार्ज को भेजने में अगर इसको कुछ वर्क डन लग रहा है लेट से डब्लू, तो वही वर्क डन जितना कि ये क्यू चार्ज को भेजने में लग रहा है उसे फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे, क्यू चार्ज को भेजने में डब्लू वर्क डन लग रहा है जैसे हमने पहले करा था, क्यू कूलम को भेजने में डब्लू जूल, तो 1 कूलम को भेजने में डब्लू अपॉन क्यू जूल, एंड दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ ऑफ अ बैटरी। तो बैटरी का काम केवल
इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी चार्ज को ट्रांसफ़र करना होता है। एंड ओवर हियर हम इसको ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कुछ हो रहा है, बैटरी कुछ वर्क कर रहा है, और उस वर्क जो बैटरी जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उससे वर्क डन को डिवाइड करके हम बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी हमें एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचाने में लगेगी, एक कूलम को जितनी एनर्जी हमें एक कूलम चार्ज को फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचाने में लगेगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डन, दिस इज़ द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड दैट वाज इन दिस सर्किट। अब समझ आ गया? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया, आई समझ आ गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V जितना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली W/Q उतना ज़्यादा होगा, राइट? जो वर्क डन है बेसिकली V इज़ W/Q, राइट? यानी कि वर्क डन अपॉन में जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है दैट वुड बी ग्रेटर। ये डायरेक्ट रिलेशन है, अब ऑब्वियसली इक्वल है तो डायरेक्ट रिलेशन तो हो गई। ठीक है, तो ये भी एक होता है कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, तो ऑब्वियसली फार्मूला ही है तो डायरेक्ट रिलेशन तो हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हम ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रखेंगे, मतलब एक बाल्टी पूरा भर दिया और दूसरी बाल्टी में बिल्कुल पूरा खाली है, ठीक है, और फिर इसे कनेक्ट किया, और फिर एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें कि बाल्टी इतना लेवल पे एंड देन द सेकेंड वन इज़ लेट्स से एट दिस लेवल। हाँ, अभी भी डिफरेंस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा या इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा? जेन्युइनली इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा ऑब्वियसली। तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो उसी वैसे ही जब वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया? तो ये भी होता है सर्किट में, ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, और हम ऐसे लॉजिकली भी बता सकते हैं कि हाँ भाई, अगर दो बाल्टी में है, एक पूरा भरा है एक पूरा खाली है, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, और ये लगभग ठीक ठाक, हाँ भले ही डिफरेंस हो लेकिन फिर भी इसमें उतना पानी फ्लो नहीं करेगा जितना कि इसमें करेगा। सिमिलरली जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो V जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। ठीक है, समझ आया? अंडरस्टूड? ठीक है, अब एक बात बताओ, हम जानते हैं कि अब जब भी कहीं से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या करना पड़ता है? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के ऐसा थोड़ी नहीं हवा में फेंक देंगे, नहीं, कुछ तो रिप्लेस करेंगे। तो हाँ, हम रिप्लेस करते हैं, जैसे हम इक्वल टू के साइन से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट यहाँ पे डालना पड़ता है, जिस कांस्टेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, इस रिलेशन के हिसाब से ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इस रिलेशन के हिसाब से ये घटेगा तो ये घटेगा। तो वो कांस्टेंट को हमें हमेशा इनपुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो V और I के बीच में जो हमने लॉजिकली बताया था कि हाँ कुछ रिलेशन है, V और I जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हमने लॉजिकली यहाँ समझा। तो अब वहीं जो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया उसकी जगह पे हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले रहे हैं R। ठीक है, अब ओम्स लॉ कुछ नहीं है, यही जो हमने VIR जो लिखा है, दिस इज़ ओम्स लॉ। यानी कि जो साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने भी कुछ नहीं करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिराइव करा था, हमने यहाँ लॉजिकली ये फॉर्मूला दे दिया। मतलब ओम्स लॉ को हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने लॉजिकली बोल दिया कि हाँ ओम्स लॉ हमने लॉजिकली डिराइव भी कर दिया। ठीक है, तो अब जो साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने में लगा वो हम सीधे सीधे बता दिए। वी हैव बेटर ब्रेन्स। ओके, कंटिन्यू। सो आर क्या होता है? आर यहाँ पे ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि आर जो है वो रेजिस्टेंस है। आर इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट द इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस फेस वाइल दे ट्रैवल। मतलब वो जा रहे हैं, ऑब्वियसली
कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि पूरा खाली ही जगह है, हाँ भाई तुम जाओ बिल्कुल ट्रैफिक है ही नहीं, वहाँ भी ट्रैफिक है, एटम है, अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत कुछ है, जनरली एटम्स है, और आउटर वॉल्स भी है कंडक्टर का, राइट। अब बताओ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, तब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही होंगी, जितने कोलिजन्स होंगे, बहुत बहुत सारी चीज़ें होंगी, सब एटॉमिक लेवल पे हो रही होंगी, तो उसी सब को जो टोटल उस पर रेजिस्टेंस पड़ रहा है, जितना वो कोलिजन फेस कर रहा है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। The resistance can be explained as the number of collisions, or it can be expressed as the number of collisions that any electron faces or any charge faces while traveling through a material or a conductor, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो मेटल्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से भेजना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने दे रहे हैं, तो उनमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस होगा, और जो नॉन मेटल्स हैं जो कि करंट को फ्लो ही नहीं करने दे रहे, तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस एंड नॉन मेटल्स हैव हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि नॉन मेटल्स में तो करंट फ्लो ही नहीं करता। अब ये जो पेन है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ओके। तो अब ये प्लास्टिक, इससे अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ और मैं यहाँ से पकड़ लूँ, मुझे करंट नहीं लगेगा, बट यही अगर कॉपर वायर होता और तब करंट फ्लो कराता तो ऑब्वियसली मुझे शॉक लग जाता। तो बेसिकली कॉपर लेट्स द करंट फ्लो वेरी इजली थ्रू आउट इट, सो कॉपर हैज लेस रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज द प्लास्टिक डज नॉट लेट द करंट फ्लो ईजली, सो इट इज़ एन इंसुलेटर कहते हैं, एंड इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अभी रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर भी हम समझ गए। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम लॉ, ओम सर ने, जो साइंटिस्ट ओम थे, उन्होंने अपने नाम पे दे दिया कि चलो अब इस रेजिस्टेंस, इस जो यूनिट है, ये जो कांस्टेंट है, उसका मैं अपने नाम पे यूनिट दे रहा हूँ, तो दैट इज़ ओम। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज़ ओम। एंड व्हाट इज़, अब ठीक है, ओके, सो वी गॉट रेजिस्टेंस, we got ohm, we got r is the resistance is expressed as r, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। एंड देन वी हैव गॉट द ओम्स लॉ, वी हैव गॉट द यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओम, ठीक है। V का SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट्स, राइट। एंड देन I का SI यूनिट्स क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। एंड देन R का SI यूनिट, अभी हम SI यूनिट्स के फॉर्म में R को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ, ये मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि जो हम ओम निकालें हैं, हम उस ओम को SI यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ताकि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो वी आर नॉट गोना टेल ओम। ओम इज़ बेसिकली, द रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। जब हम 11th में जाएंगे तब हम फिजिकल जो मेजरमेंट्स हैं, हम जो फिजिक्स इन डेली लाइफ जो चैप्टर पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर 11th की NCERT का, तो उसमें हम देखेंगे कौन सी फिजिकल है, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ में करंट आता है, बट फिजिकल क्वांटिटीज़ में रेजिस्टेंस नहीं आता है। तो हम रेजिस्टेंस को फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट वुड बी वोल्ट्स अपॉन एम्पियर, दिस इज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ this resistance has got its SI unit like this, that is VI to the power -1. This can be written as the SI unit. अगर कहीं ऑप्शन में ये हो और साथ में ओम भी हो और साथ में मल्टी करेक्ट हो, तो मल्टी करेक्ट में आपको दोनों पे टिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि मल्टी करेक्ट ऑप्शंस में क्या होता है ना, कि जैसे A होगा, कुछ B होगा, कुछ C होगा, राइट, और कुछ D होगा। और मल्टी करेक्ट एक होता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, जो जेई का पेपर आता है उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, मल्टी ऑप्शन करेक्ट होते हैं, हाँ न्यूमेरिकल भी आते हैं उसमें। तो जो सिंगल और मैचिंग भी आता है, तो जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है उसमें चार में से कोई एक ही करेक्ट होता है। जो मल्टी ऑप्शन करेक्ट होते हैं उनमें चारों में से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि दो से ज़्यादा करेक्ट हो जाए। तो अगर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, एक जगह VI-1 दिया, एक जगह ओम दिया, एक जगह वोल्ट दिया, एक जगह एम्पियर आई दिया है, एम्पियर दिया है, सॉरी, तो इसमें आपको A और B दोनों को टिक करना है, ठीक है। ये मल्टी करेक्ट का बेसिक फंडा होता है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ, नाउ लेट अस सी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज ओम्स लॉ डिपेंड, ठीक है। अब है तो ये लॉ, अब ये लॉ ऑब्वियसली कहीं तो गलत होगा, हर लॉ अभी तक जो बना है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज इट प्रूव्स रॉन्ग।
अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि अभी तक रॉन्ग नहीं प्रूव हुआ है तो कोई बात नहीं, कुछ साल और रुक जाओ और वो लॉ भी रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट जो वर्क करते रहते हैं कि हाँ क्या ये यूनिवर्सल है। बहुत फिजिक्स इज़ नॉट एक्चुअली यूनिवर्सल, वी फाइंड मैनी थिंग टू बी फ्लक्चुएटिंग एट अ पर्टिकुलर वेरिएशन। ओके, सो अब देखते हैं कि ओम्स लॉ कैसे वेरी करता है। अब जब ओम्स लॉ का जो प्लॉट साइंटिस्ट ने प्लॉट किया तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और दी रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे जब साइंटिस्ट ने प्लॉट किया कि रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, सो दे फाउंड कि ठीक है ये जा रहा है, फिर कहीं पे ये ऐसा हो जा रहा है, कहीं पे फिर ये कट हो जा रहा है एंड देन वो ऐसे करके फ्लो कर दे रहा है। तो रेजिस्टेंस या बेसिकली ऐसा हो जा रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन पे वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ना रेजिस्टेंस, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट इंक्रीज कर रही है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन को कहते हैं ओमिक टेम्परेचर्स। ठीक है, और ये सारे हो जाएंगे नॉन ओमिक टेम्परेचर्स। मतलब ओमिक टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर्स पे ओम्स लॉ वैलिड है, सीधा सा। जिन टेम्परेचर्स पे ओम्स लॉ वैलिड है उन टेम्परेचर्स को ओमिक टेम्परेचर्स कहते हैं। जनरली जो रूम टेम्परेचर है वो ओमिक टेम्परेचर पे होता है। तो जितने भी हम अभी 10th के बेसिक्स में हम जितनी कैलकुलेशन करेंगे उस सारी ओमिक टेम्परेचर्स पे बेस्ड होंगी, वो सारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो अगर कोई रैंडमली पूछ दे कि बताओ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ओम्स लॉ वैलिड होगा या नहीं, तो 25 डिग्री सेल्सियस इज नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, तो ऑब्वियसली उस पर वैलिड होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे ओम्स लॉ वैलिड होता है। अब नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया तो इस पर थोड़ा और स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस है क्या, इसकी थोड़े और डीप में जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम रेजिस्टेंस को उसी कोलिशंस के फॉर्म में अभी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस से मान लो एक कंडक्टर है कोई, इसमें भी एटम्स है, राइट, जो कि हम कोलिशंस के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट, एटम्स आ गए इसमें। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जितनी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा बार इसे कोलिजन्स फेस करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि इतना ही वायर होता, इन केस इतना ही वायर होता, तो ऑब्वियसली उसको केवल 3 कोलिजन्स फेस करनी पड़ती। अब क्योंकि वायर इतना लंबा है तो उसे 1 2 3 4 5 6 7 इतने नंबर ऑफ़ कोलिजन्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि कोलिजन्स का जो नंबर है, राइट, जो कोलिजन्स का नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लेंथ के। मतलब जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को फेस करने पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फेस कर रहा है। ओके, नाउ अब हम एक और चीज़ देखें, अगर इसी वायर को हम थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा दें, ठीक है, इसी वायर का हम एरिया बढ़ा दिया, हमने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, अभी भी एटम्स तो वही हैं भाई। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, डोंट यू थिंक दैट इट विल फाइंड इट मोर ईजी। भाई अब जगह खुला खुला है, अब आराम से चलो। वो रोड पे क्या होता है, अगर कंजेस्टेड रोड हो, पतला रोड हो, तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, ऑब्वियसली हमें दिक्कत आती है कि भाई गाड़ी कहाँ से निकालें। अब अगर रोड ही इतना 6 वे रोड है तो ऑब्वियसली उसमें इतना ज़्यादा जगह है कि चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं, सब फ्री है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। तो उसी तरीके से जब रोड यानी जब एरिया बढ़ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो नॉर्मल चलता जा रहा है, उसे ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही। वही जब उसी रोड को हमने पतला कर दिया, इलेक्ट्रॉन बोल रहे क्या यार इतना कंजेस्ट क्यों कर दिया, ज़बरदस्ती भेज भी रहे हो और ऊपर से और रोड पतला कर दिया, दिक्कत और आ रही। तो वही बात हो जाती है कि जो कोलिशंस है, राइट, वो जब रोड बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इट ईजी, दैट इज़ नंबर ऑफ कोलिशंस डिक्रीज्ड, मतलब एरिया बढ़ा कोलिशंस डिक्रीज, राइट, एरिया बढ़ा कोलिशंस डिक्रीज, यहाँ पे एरिया कम है तो कोलिशंस इंक्रीज। तो मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, परफेक्ट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दो जो बेसिक्स हैं, इन्हीं बेसिक्स पे जो रेजिस्टेंस का जो हमने बुक में एक और फॉर्मूला दे रखा है वो इसी दो के बेसिस पे है। अभी हमने समझ लिया कि ये दो कहाँ से डिराइव हुए। ठीक है, अब कोलिजन्स
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को कोलिजन्स के फॉर्म में समझ रहे हैं, तो ये बेसिकली हमने इसे रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया। और साथ में जब भी हम दो अलग अलग या कुछ नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बन जाते हैं या नंबर ऑफ़ रिलेशंस बन जाते हैं, तो जब हम उन्हें कंबाइन करके एक रिलेशन बनाते हैं तो हम ऑलवेज हम हमेशा हर इक्वेशन को, हर रिलेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, लेंथ अपॉन में एरिया, राइट। लेट्स रिप्रेजेंट दिस रेजिस्टेंस एज आर, लेंथ एज एल एंड एरिया एज ए। Okay, perfect. Now whenever we remove the directly proportional, we know that we replace it by any constant. Okay, so in this case we are replacing it with this. अब ये क्या चीज़ है, पहले तो यही कांस्टेंट आया था ओम्स लॉ में, अब ये एक और कांस्टेंट आ गया। क्या करें यार, फिजिक्स है। तो ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है समझते हैं इसको भी। रेजिस्टिविटी क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी है कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है। मतलब मटेरियल जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, और एक चीज़ ले लेते हैं जैसे प्लास्टिक ले लेते हैं। तो मटेरियल्स में क्या ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ होगी ना ऑब्वियसली जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल करेगी या उसको रेगुलेट करेगी, या वैसे फ़्लो को कुछ तो वो इन्फ्लुएंस करेगी। मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है। कॉपर में क्यों कंडक्शन हो जाता है और यही प्लास्टिक में कंडक्शन नहीं होता, तो कुछ तो ऐसा होगा जो कि जो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो हैं, जो करंट का फ़्लो है, उसको कुछ ना कुछ तो रेगुलेट कर रहा होगा, कुछ उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा होगा, मटेरियल पे जो डिपेंड कर रहा है। तो वैसी ही चीज़ रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू लेट द करंट फ्लो थ्रू इटसेल्फ। ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी तो ऑब्वियसली हर केस में हर मटेरियल के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम कोई एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं डाल सकते। वो हर केस में हमें अगर ऑप्शन में ऐसे दिए होंगे, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा कि रेजिस्टिविटी फॉर द कॉपर इज़ दिस, तो हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे और फिर हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो आसान हो जाएगा। हालांकि अगर कहीं रेजिस्टिविटी नहीं गिवन है तो हम ऐसे ही रो डाल के छोड़ देंगे, बिकॉज वी डोंट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ना, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, इट चेंजेस फॉर एवरी कंडक्टर। सो वी वोंट डू लाइक दिस, वी विल सिंपली, अगर नहीं गिवन है तो बस रो डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड रो। ये डेंसिटी का भी यही सिंबल होता है और रेजिस्टिविटी का भी यही सिंबल होता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, ये हम समझ गए। अब ये जो रेजिस्टिविटी है, लेट्स से अगर कोई टेम्परेचर टी पे अगर हम इसको निकालना चाहें तो वो ऐसा फॉर्मूला आता है उसका। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया मैंने, द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर एट अ टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस this is again another coefficient, that is a constant, times the temperature times the resistivity of the conductor or of the material at 0 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने क्या लिखा अभी भी नहीं समझ आया होगा, चलो अभी समझाता हूँ। मतलब बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो रेजिस्टिविटी होगी किसी भी कंडक्टर की टी टेम्परेचर पे, वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उससे रिलेट करती है। कैसे करती है, तो वो 1 प्लस अल्फ़ा टी, यानी कि अगर टी टेम्परेचर पे बढ़ा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से टी टाइम्स टी टेम्परेचर यानी जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर बेसिस पे बढ़ेगा। अभी भी नहीं समझ आया होगा, देखो बताता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे कोई चीज़ है, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लेट से ये कुछ वैल्यू है, और फिर हमने 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये वैल्यू थी तो 2 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू पे कुछ ऐसा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हम जो इंक्रीज़ है, जो 2 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में जितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हम निकालेंगे। तो देखो इसको अगर ऐसे लिखें, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो आर एट एनी टेम्परेचर टी माइनस आर एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर टी टाइम्स अल्फ़ा, ये क्या देगा, ये हमें देगा द इंक्रीमेंट परसेंटेज, यानी जो भी चीज़ जो इंक्रीज़ कर रही है उसकी परसेंटेज देगा ये, टाइम्स
द सेम दिस थिंग, द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक 11th का फॉर्मूला है, 12th का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कुछ टेम्परेचर टी है तो उस टी टेम्परेचर पे जो 0 डिग्री सेल्सियस से वो रिलेट कर रहा है रेजिस्टेंस, कैसे कर रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ अल्फ़ा कोएफिशिएंट जो है वो अल्फ़ा टाइम्स हर डिग्री सेल्सियस पे इंक्रीज़ कर रहा है। इस कोएफिशिएंट को मैं और इजी तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे ये जो अल्फ़ा है दैट इज़ द रेजिस्टेंस दैट इंक्रीजेस पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट इज़ द इंक्रीमेंट पर डिग्री सेल्सियस, हर 1 डिग्री सेल्सियस पे जो इंक्रीमेंट है उस वो अल्फ़ा है। तो अगर T डिग्री सेल्सियस तक की इंक्रीमेंट की बात चल रही है तो वो अल्फ़ा टी हो जाएगा। और वो जो अल्फ़ा टी है, ये जो इंक्रीमेंट है वो बेसिकली इस पे बेस पे होता है। तो हर जो बेसिक टेम्परेचर है उस पर वो वेरी करते रहता है। तो बेसिकली हम हमेशा उसको पी नॉट की वेरिएशन में लिखते हैं, तो वो अल्फ़ा टी पी नॉट हो जाता है और फिर वही फार्मूला पे सेम चीज़ पुट हो जाती है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। ये अगर कोई समझ नहीं आया अभी कोई बात नहीं, ये हम ट्वेल्थ में जब ट्वेल्थ की वीडियोस करेंगे तो उसमें हम ये समझ जाएंगे। ठीक है, अब अभी तक में हमने यहाँ तक देख लिया। अब यहाँ चाहो तो अभी सर्किट डायग्राम्स पे देख ही लो। सर्किट डायग्राम्स, अब हम यहाँ तक का जितना भी पार्ट था, ठीक है, वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। यानी कि अब जितनी भी चीज़ें थी जो ओम्स लॉ पे बेस्ड थी, VIR, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। VIR की जो बेसिक्स हैं वो कवर कर लिए, सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। नाउ अब हमें अगर पावर और हीट पढ़ना है तो हमें ऑब्वियसली जो सर्किट डायग्राम्स है उन्हें समझना हो, बिकॉज हमें पावर और हीट पढ़ने के लिए हमें सर्किट डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे वायर आ जाता है, इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। बल्ब आ जाता है जिसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, राइट। और स्विच आ जाता है, स्विच भी दो टाइप से डिनोट करते हैं। एक ये वाला स्विच जो कि ये ओपन फॉर्म है इसका, ये इसका क्लोज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये एक स्विच हो गया। और फिर स्विच हो गया, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एंड देन वी हैव व्हाट, और क्या क्या डाल सकते हैं, डाल दो रेजिस्टेंस, डाल दो इसमें। सर्किट है भाई, रेजिस्टेंस तो डालना ही पड़ेगा। रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये दिक्कत पैदा करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। तो ऑब्वियसली ये कुछ उबड़ खाबड़ रोड टाइप का है, जो कि गाड़ी जा रही है उसको दिक्कत दे रही है। तो वैसे ही हम इसको याद कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली अ जिगजैग थिंग, जिसको रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस में भी रियोस्टैट होता है। ठीक है, ये जो रियोस्टैट होता है वो बेसिकली एक बॉक्स टाइप का होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ऐसा कुछ होता है रियोस्टैट। जो प्रैक्टिकल लैब में देखोगे तो ऐसा कुछ होता है, जिसमें अलग अलग जगह पे जॉकीज़ को डाल देना रहता है। मतलब जो जॉकी डालोगे उस हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी करेगी। मतलब ये सभी में अंदर में वायर्स होते रहते हैं, और ये जॉकी के अंदर इंडिविजुअल कुछ रेजिस्टेंस वाला वायर होता है, जो कि जब इसके अंदर डाल दिया जाता है तो उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे वो उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर अगर यहाँ भी एक और जॉकी डाल दो तो यहाँ पे और उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ और जॉकी डालते जाओ तो उसको उसको बेसिकली वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, जितना रेजिस्टेंस चाहिए वो एक ही डब्बे के अंदर सारे रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ऐसे क्या होगा, इंडिविजुअली 1 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, फिर 2 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, फिर 5 ओम। उसकी ज़रूरत नहीं, सीधे रेजिस्टेंस जो रियोस्टैट है उससे कनेक्ट कर दो। इंडिविजुअल अलग अलग जॉकी को बस इधर उधर करते रहो, और फिर यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज़ नीडेड इन अ सर्किट। तो ये बेसिकली जब हम ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं लैब में तो हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, उसमें ज़रूरत पड़ती है और भी जो कुछ जो चीज़ें हैं, जैसी मीटर ब्रिज हो गया, उस सब चीज़ों में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये रियोस्टैट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग वेयर दिस इज़ द जॉकी दैट सेज कि हाँ यहाँ तक का जो वायर है वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ के वायर का कोई काम नहीं है। मतलब बेसिकली हम जो इसको डालते हैं, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं, जैसे कि अगर ये है, ये यहाँ पे आया तो जो एक्सटर्नल वायर कनेक्टेड है वो यहीं से कनेक्टेड हो जाता है। मतलब ये यहाँ से करंट आया गया और फिर यहाँ से निकल गया, तो इस पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो यहाँ का रेजिस्टेंस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें केवल इतने रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी तो हमने इतना ले लिया। ऐसे करके हम इसको यूज़ करते हैं रियोस्टैट को। बस यही होता है। और कनेक्टेड वायर अगर शो करते हैं तो कनेक्टेड वायर को
ऐसे करके शो कर देते हैं कहीं भी वो कनेक्शन में। और अगर नॉन कनेक्टेड वायर को शो करते हैं, मतलब दोनों कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वायर ले लेते हैं, दूसरे को ओवर ब्रिज हाईवे बना के चले जाते हैं। एक आया ऊपर से चला के कनेक्ट नहीं हुआ, और अगर कनेक्ट हो रहा है तो सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। सो इन दिस वीडियो, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ओम्स लॉ, वी हैव कवर्ड द current, we have covered resistance, we have covered potential difference, we have covered the factors on which resistance depends, we have covered the circuit diagrams which will help us in understanding the heat produced in a circuit and everything that we'll cover in the next video. So ये सर्किट डायग्राम ज़रूरी था इस वीडियो में बताना है, क्योंकि अगले वीडियो में हमें क्या क्या करना है, हमें पावर डिसिपेटेड बताना है, पावर डिसिपेटेड पढ़ना है, और फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हीट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सर्किट। उसके भी बहुत सारे फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले हैं शायद हीट वाले के, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, या एक दो न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल्स जो जितने भी हाई लेवल न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे कल से करना, ठीक है। और अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ उन्हें आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, आंसर करना कि उनके आंसर आपके क्या आ रहे हैं, और फिर मैं चेक कर लूँगा। या अगले जो क्लास होगी हमारी, अगले जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं उन आंसर्स को, जो अभी क्वेश्चन दूंगा उन आंसर्स को मैं अगले क्लास में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स से पहला क्वेश्चन, अगर 3 कूलम चार्ज जा रहा है दैट इज़ फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर लेट्स से 5 सेकेंड्स, ठीक है। फाइंड द करंट दैट इज़ फ्लोइंग। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड आई दैट इज़ फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है। अब और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, इसी का लेवल बढ़ाते हैं। लेट्स से 10 to the power 6 electrons are flowing through a conductor for 100 seconds. Find the current flowing, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे नोट करते हैं, हाँ ठीक है। अब आई पे तो आ गया, क्वेश्चन 3 को लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस पे बेसिस पे करते हैं। अगर हमें इन्फिनिटी से लेट्स से 1000 जूल वर्क लग रहा है टू ब्रिंग कितना 20 कूलम चार्ज, ठीक है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ अप्लाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी भी सर्किट में हमने 100 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है, और उस सर्किट में हम जान पा रहे हैं, जब हमने एमीटर, अच्छा हाँ एमीटर और वोल्ट मीटर, ये इंपॉर्टेंट थे अभी याद आया, इसी में एमीटर और वोल्ट मीटर और साथ में गैल्वेनोमीटर, ये सारी क्या चीज़ें आ गई अचानक से, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते हैं। एमीटर को डिनोट करते हैं ए से, वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं वी से, गैल्वेनोमीटर को डिनोट करते हैं जी से। अब एमीटर क्या होता है, एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से। अब एक बात बताओ, ये कनेक्टेड बैटरी, अब जब हम अगले क्लास में सीरीज़ पैरेलल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, उसमें हम समझ पाएंगे कि कैसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड है, मतलब किस पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो हम सीरीज़ पैरेलल जब करेंगे तब हम समझ पाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखना, फिर मैं उसमें बता दूंगा और डीप में बताऊंगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अभी बताता हूँ कि हम करते क्या हैं। तो हम करते ये हैं कि हम सीरीज़ में एमीटर को कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट वायर को सीरीज़ कहते हैं, और पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हमेशा। हाँ, चाहे एमीटर यहाँ करो, एमीटर कहीं भी कर दो, वोल्ट मीटर यहीं पे कर दो, कहीं भी कर दो, बट एमीटर हमेशा सीरीज़ में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। ये अभी बस इतना याद रख लो, अगले वीडियो में जब हम करेंगे तो मैं फिर तब बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे, क्या सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो अगले वीडियो में जब मैं सीरीज़ पैरेलल बताऊंगा तब फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ पे करंट की ज़रूरत पड़ती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा हो सकता है, तो रेजिस्टेंस की क्या वेरिएशन आती है, तो ए में क्या कैसा रेजिस्टेंस होता है, बी में कैसा रेजिस्टेंस होता है,
यानी एम मीटर वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, फिर करंट की क्या रिलेशन है उसमें, किस में ज़्यादा किस में कम, तो वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी आपको सीरीज़ पैरेलल नहीं बताया मैंने। तो ये बस याद रखो कि एम मीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। एम मीटर का काम है कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताना, वोल्ट मीटर का काम है कितना पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट पे, यानी इस दो पॉइंट पे कनेक्टेड है वोल्ट मीटर, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताने का काम है वोल्ट मीटर का। गैल्वेनोमीटर का केवल इतना काम रहता है कि वो एक स्ट्रेट एरो रहता है, वो केवल जब करंट फ्लो करता है तो वो हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाता है, वो जितना डिफ्लेक्ट कर जाता है वो केवल डिफ्लेक्ट करता है, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता, वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता। एमीटर का काम है टू टेल दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वोल्ट मीटर का काम है टू टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, गैल्वेनोमीटर केवल डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, मतलब टिल्ट किया, इधर टिल्ट किया तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, पीछे टिल्ट किया तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दो डायरेक्शन में टिल्ट होता है, जैसे एक ये टिल्ट होता है और एक ये टिल्ट होता है, ठीक है। इधर टिल्ट किया मतलब करंट आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, और अगर टिल्ट उधर की तरफ हो गया तो मतलब करंट उधर जा रहा है, और इसका नॉर्मल पोजीशन जो होता है वो सीधा होता है, राइट। ये गैल्वेनोमीटर है, ये केवल तभी होता है जब करंट में डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। वो गैल्वेनोमीटर का काम है कि वो केवल इतना शो करता है कि करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। हाँ, अब क्योंकि करंट है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया, और अगर कम करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। मतलब अगर एक साथ मैंने बहुत करंट फ्लो करा दिया, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगा, और कम करंट फ्लो कराया तो केवल ऐसा रहेगा। तो अपॉन सीइंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वी कैन स्टेट कि ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है या कम कर रहा है, बट वी स्टिल कैनॉट स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द एसआई यूनिट्स एम्पियर। मैग्नीट्यूड हम गैल्वेनोमीटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं होता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, उसमें मार्किंग ही नहीं की होती। एमीटर में मार्किंग की होती है। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट। फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत माइन्यूट क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट, तो वो गैल्वेनोमीटर होता है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर करंट, तो वो एमीटर होता है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो गैल्वेनोमीटर होता है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो वो एमीटर होता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, ये मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की। ये केवल डायरेक्शन शो करता है। हाँ, अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जैसे मिली एम्पियर्स में है तो उस केस में वो मैग्नीट्यूड भी शो कर देता है, ठीक है। बट अगर एमीटर है, सो यू आर इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन, यू कैन मेजर द करंट से 10 एम्पियर 15 एम्पियर जितने तक का उसमें मेजरिंग होती है, उतने तक का आप मेजरिंग जितने एमीटर में गिवन है उतना मेजरिंग आप करंट का कर सकते हो, ठीक है। वो एमीटर शो करता है और ये गैल्वेनोमीटर फॉर द डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी इतना हो गया फॉर द सर्किट डायग्राम्स। नाउ वी वे अपॉन दिस क्वेश्चन 100 वोल्ट्स अगर हमने 100 वोल्ट्स की बैटरी लगाई एंड अपॉन पुटिंग द एमीटर इन द सर्किट वी फाइंड दैट 10 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, सो फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अगेन अनदर गुड क्वेश्चन, लेट्स से द लेंथ ऑफ अ वायर is 10 meter, area is 40 मीटर स्क्वायर। रिमेंबर एरिया और लेंथ दोनों की एसआई यूनिट्स मीटर ही यूज़ होंगे आर को फाइंड करने में भी। एंड लेट्स से जो रो है दैट इज़ 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो फाइंड एल एंड फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक बात होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आर एल अपॉन ए होता है, राइट। तो ये ओम है, ये रो है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर। अभी मैं यूनिट्स फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ आपको। यूनिट्स कैसे, आप अगर कभी एग्जाम में बैठे हो एंड यू डोंट रिमेंबर द यूनिट, तो आप ऐसे करके ईजिली फाइंड कर सकते हो। आप बस वैल्यू फार्मूला लिखो, उसकी इंडिविजुअल एसआई यूनिट्स जितनी पता है वो सारी लिख दो, और फिर काटापीटी कर दो, इसको इधर भेज दो, तो आपको फाइनली मिल जाएगा कि किसी भी यूनिट या किसी भी फिजिकल किसी भी क्वांटिटी की आपकी क्या यूनिट होगी एसआई यूनिट्स में, वो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो रेजिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट्स ओम मीटर होती है। ये हमने ऐसे फाइंड किया। अब लेट्स से इंडिविजुअली कुछ रेडियस था किसी वायर का, और उस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया। मतलब अगर कोई वायर है, राइट,
कोई ऐसा वायर है जिसका लेंथ L है, जिसकी एरिया A है, और इसी वायर को हमने बस स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, हमने वायर को स्ट्रेच कर दिया टू मेक द लेंथ NL, ठीक है, लेंथ को हमने NL किया, देन टेल अस व्हाट इज़ द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में चेंज क्या है, रेजिस्टेंस इस वायर का क्या होगा। लेट्स से इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस R है, तो फिर बताओ कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। रिमेंबर, हमने वायर को कट नहीं किया, हमने वायर को बस स्ट्रेच कर दिया है। एज अ हिंट आई कैन से वॉल्यूम दोनों वायर्स की सेम होगी क्योंकि हमने केवल वायर स्ट्रेच किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। और इसी बेसिस पे लेट्स से अगर कोई लेंथ L है, एरिया A है, और इसी को हमने बस एरिया को NA कर दिया, और अगर इसकी रेजिस्टेंस R है, देन टेल व्हाट इज़ दिस R डैश, यानी इसकी रेजिस्टेंस को मैंने R डैश ले लिया, तो फाइंड आउट व्हाट इज़ R डैश, व्हाट इज़ R डैश रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज एंड देन आप इसके आंसर्स कमेंट में भेज सकते हैं। आई विल चेक अपॉन दैट, और अगले वीडियो में मैं इसके आंसर्स आपको बता दूंगा, एंड देन यू कैन क्रॉस चेक कि आपने कितने सही बनाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन से, बहुत आसान है, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट, ओके, यू कैन ईजिली सॉल्व दीज। सो this was the end of this video, and I will meet you in the next video in which we will do what? We'll do the heat dissipated, we'll do the power dissipated, we will do the complex diagrams, we'll do the circuit diagram and circuit diagram analysis. It is an individual topic, it is a very big topic. Circuit diagram analysis जो है ना, ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। सर्किट डायग्राम एनालिसिस मतलब इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, KCL आ जाता है, KVL आ जाता है। अभी तो हम बेसिक 10th तक के लेवल का किया है, इस वीडियो में हमने 10th लेवल का ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, फिर और कुछ ज़्यादा 10th लेवल से हाई कुछ नहीं है। लेकिन अगले वीडियो में हम KCL करेंगे, KVL करेंगे, जो कि लिटरली 12th लेवल का है। सो वो सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और अगर KCL KVL लगा दोगे तो आराम से कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम बहुत छोटे में ब्रेक हो जाएगा, और फिर आप उसको 10th लेवल पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी आर गोना डू, एंड टिल देन बाय बाय, keep studying, keep learning, and share these videos, share this channel, share the Irish EduTime channel to all your friends who want to study, who have the zeal to study something higher, and who want to prepare themselves for the competitive exams, because the depth of learning that is offered here is something which will come very expensive if you see in real life, but I'm making it available free to you. So thank you and bye bye for today, and share this video to all your friends, okay? Thank you and bye bye, keep learning.